بتاتے ہیں کہ وہ مشن ٹرپ میں اس وقت سربیا میں ہے. تو فیس بک پہ آپ لوگوں نے ان کی اپلوڈس وغیرہ دیکھی ہوں گی ساتھی، لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. آج کا کلام خدا نے اپنے بندہ ریورنڈ ڈاکٹر آصف ایم صادق کو دیا ہے، جو ہمارے درمیان میں گلفرڈ سے موجود ہے. بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، آپ نے پہلے بھی ان کو سنا ہوگا. فیس بک پہ بھی اکثر ان کی اپلوڈس جو ہے وہ ہیں. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ بعد میں ان کے پیج پہ جا کے ضرور کر سکتے ہیں. خدا کا بندہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے خدا کو اپنی زندگی دی، اور نہ صرف زندگی دی بلکہ اپنے خدا کو سرو کرنے کے لیے پراپر منسٹری میں آ کے وہ خدا کی سرو کر رہے ہیں. It's been 24 years that he's serving our Lord Jesus Christ. جب آپ ان کو دیکھیں گے ملیں گے تو he look quite young. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ how young he was when he started serving the Lord. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلف میں، افریقہ میں اور ادھر ویسٹ کے ایریاز میں کافی جگہوں میں خدا کی خدمت کی ہے، خدا کے نام کو پرچار کیا ہے، بیان کیا ہے. اور ابھی اس وقت وہ گلفرڈ سیون کنگز ایونجلسٹ چرچ جو ہے وہاں پہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ گلفرڈ پہلے جا چکے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ان کو دیکھا ہوگا، ان سے ملاقات ہوئی ہوگی ان کی. اس کے علاوہ خداوند نے اپنے بندہ کو جو علم بخشا ہے، جو نالج ان کو دی ہے، انہوں نے اپنی طرف اپنے پاس صرف نہیں رکھی بلکہ ہی از اے آتھر آف آلموسٹ 2 بکس ناؤ. پہلی بک ان کی جو ہے پریگمیٹزم حقیقت ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے بدلو گرفتہ لوگوں کے لحاظ سے کہ ان کو کیسے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کے روح کے، خدا کے خون کے وسیلہ سے آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ان سے پاک و صاف ہو جا سکتا ہے. مزید اگر وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے بعد میں بات کر سکتے ہیں. اینڈ his second book is on the way, which is about how we overcome جو ٹیمپٹیشنز ہیں ہمارے، ان کو کیسے کر سکتے ہیں خدا کے لہو کے وسیلہ سے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے آج ممکن کیا کہ خادم ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور میں چاہوں گی کہ ہم خدا کی جلال کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے خدا کے بندہ کو ویلکم کریں. خدا کا شکر، خدا کی تعریف اسی کے نام کی تمجید ہو. بیٹی نے بہت کچھ بیان کر دیا، ہم خاک و پاک ہیں، کچھ نہیں، لیکن جو کچھ نہیں ہے خدا یسوع مسیح کے فضل سے ہے. وہی دکھے ہم چھپے، وہی بڑھے ہم گھٹیں. آج خدا کے زندہ کلام میں سے جو خداوند نے مجھے کلام دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے عبادت کے شروع میں بیٹی نے اسکرین پہ بھی ورس کو ڈسپلے کیا، یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 10ویں آیت. اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. آج 10ویں باب کی 10ویں آیت یوحنا کی انجیل، اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. عزیزو، ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم یسوع مسیح کے لہو سے دھل جاتے ہیں، نجات کو حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنے تک محدود رکھنا خدا کے کلام کا حصہ نہیں، نہ خدا کے پروگرام کا حصہ ہے. خدا کی کبھی بھی یہ ویژن نہیں رہی کہ انسان ہلاک ہو. خدا کا ہمیشہ سے منصوبہ انسان کو تلاش کرنا اور اس کو زندگی دینے کا ہے. موت اور ہلاکت ہمارا اپنا چناؤ ہے، یہ خدا کا منصوبہ نہیں. اگر آپ بائبل کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو ہمیشہ ایماندار کے لیے تقویت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ اچھا ہے اور اس نے کہا کہ اچھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا بھی اچھے سے ہوتی ہے اور پھر مکاشفہ کے اندر جب ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں وہ ان کے سب آنسو پہنچ دے گا، وہاں نہ ماتم ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا، وہاں دکھ نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی
अच्छी है और इंतहा भी अच्छी है, लेकिन इस सारे सिस्टम के दौरान, इस सारे प्रोग्राम के दौरान जो मिडल में बिगाड़ पैदा हुआ इब्लीस के वसीला से, उसको दुरुस्त करने के लिए यीशु मसीह को, अपने बेटे को खुदा बाप ने कलवरी तक भेजा, ताकि उसके वसीला से हम निजात पाएं और जिंदगी पाएं, और सिर्फ जिंदगी ना पाएं बल्कि अबंडेंट लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, कंप्लीट, जिसमें कोई सुकून ना हो, कोई रिखना ना हो, कोई उसके अंदर ऐसी चीज ना हो जो किसी तरह की कबाहत या नेगेटिविटी को जाहिर करे, बल्कि कंप्लीट पाकीज़ा मुकम्मल जिंदगी देने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और वो आज भी हमें अपने बेटे के वसीला से तलाश कर रहा है। बाप ने सबसे पहले खोए हुए आदम ने तलाश किया, और अब वो अपने बेटे के वसीला से हमें तलाश करता है। और यही आज मेरा टॉपिक है कि हम हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकते हैं। इंसान होते हुए हम हमेशा नेगेटिव चीजों को, मनफी चीजों को पहले देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। मैंने बहुत मुशाहिदा किया, मैं बिल्कुल टीनेज था, मैं स्कूल गोइंग हाई स्कूल में था जब मैंने खुदावन को अपनी जिंदगी दी। उससे पहले मैं खुदावन से बहुत दूर था और बहुत खुदा के कलाम से दूर रहता और खुदा के कदमों तक को मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन जब खुदावन ने ये लंबी दास्तान है मुझे चुना, मैंने तब से आज तक मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि इंसान दुख के अंदर है। अय्यूब की किताब में लिखा है ना कि जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही बड़ी आदम दुख के लिए पैदा हुई, ये इंसान के लिए। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर इंसान दुख के अंदर है, और उस दुख के वसीला से इंसान के अंदर से ऑटोमेटिकली मनफी चीजें निकलती हैं। लेकिन मुबारक है खुदा जो बुराई में से भलाई पैदा करने पर कादिर है। मुबारक है खुदा जो हर रोज एक दिन भी नागा नहीं करता। 365 days in a year और 366 days in a leap year, every day वो हमारा बोझ उठाता है। खुदा के कलाम में यही लिखा है। इंसान होते हुए हम हमेशा गलत चीजों का चुनाव करते हैं, गलत चीजों की तरफ जाते हैं, गलत चीजों के बारे में सोचते हैं, और हम देखते हैं कि इंसान अक्सर जिंदगी को छोड़कर मौत को चुनता है। हमारा कई दफा तकिया कलाम भी मौत होता है। हम मौत को मद्देनजर रखते हैं, बहुत सी चीजों में हम खदशात को, शकूक को अपने सामने रखते हैं। हम जिंदगी की बात, बहुत कम लोग हैं जो जिंदगी की बात करते हैं। हालांकि ईमानदारों को न सिर्फ जिंदगी दी गई बल्कि ये ईमानदारों की जिम्मेदारी है कि वो जिंदगी दूसरों तक पहुंचाए। अगर हम इवेंजलाइज नहीं करते, अगर हम खुशखबरी नहीं देते, ट्रू गॉस्पेल को बयान नहीं करते, हम मुजरिम हैं, हम खुदा के कलाम को रोकने वालों में से हैं। और याद रखें कि खुदा गड्ढों में उड़ाया नहीं जाता। मेरे सामने एक दास्तान है पुराने अहदनामे से, एक हवाला है, लंबा हवाला है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। ये हवाला शुरू को मिड ऑफ द 6th चैप्टर होता है और ये तकरीबन 7वें बाब के आखिर तक जाता है। बहुत लंबा है, लेकिन मैं चंद एक वर्सेस पढ़ूंगा। दूसरा सलातीन, 2 किंग्स, और उसका 7वां बाब, 7th चैप्टर, और उसकी 3री आयत से 9वीं आयत तक है। मैं तेज पढ़ूंगा। वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़ा मुख्तसर अंदाज में समाप्त कर सकूं कि खुदा की हमारी बाबत क्या मर्जी है। 3री आयत से मैं पढ़ूंगा। उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। कोड़ जो है वो गुनाह की अलामत है, गुनाह का वसील है। 4 कोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे। गौर कीजिएगा लफ्जों पे, इंसान जो बात करता है, ये गुनहगार इंसान, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इखलाकी तौर से देखा जाए तो हम सब ही कोड़ी हैं। हम तरह तरह के कोड़ में हैं। कोई हसद के कोड़ में है, कोई झूठ के कोड़ में फंसा हुआ है, कोई तकब्बुर के, गरूर के कोड़ में है। हम तरह तरह के कोई गलत सोचों के कोड़ से लिथड़ा हुआ है।
बीमारी है कि अगर आप सही तौर से लिपर्स को देखें, वो पूरी बॉडी को उन्होंने पट्टियों से लपेटा होता है, इसके बावजूद अगर वो इस चर्च से भी चंद कदम पीछे खड़ा हुआ, आप उसकी स्मेल यहां तक महसूस कर सकेंगे। हम इस कदर रूहानी तौर पर गलासत के अंदर है और खुदा की आंखें तो इस कदर पाक है कि वो गंदगी को देख ही नहीं सकती, गुनाह को देख ही नहीं सकती, और हमारी नेकी के काम भी आदम के गुनाह के वसीला से गंदी धज उसकी निगाह। हम कैसे अपने आप को पाक साफ कह सकते हैं जब तक कि खुदा का लहू ही हम पर नहीं है? तो यहां जो चार कोड़ी हैं, जो चार गुनहगार हैं, जो हमारी मिसाल है, वो बात क्या करते हैं? वो मौत की बात करते हैं, जिंदगी की बात नहीं करते। लिखा है उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां क्यों मरे? आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं ये वर्सेस। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है, और काल भी एक तरह से मौत है। जब खुराक नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये डेथ है। अगर हम शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है, और हम वहां मर जाएंगे, फिर मौत की उनसे उनकी सोच में, उनके आगे पीछे उन्हें मौत ने घेरा हुआ है, वो जिंदगी को देख नहीं पा रहे। हम कोड़ी हैं, हम शहर में मरेंगे, बाहर जाएं शहर में काल है, बाहर जाएं तो भी मरेंगे, अगर यहां बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर के अंदर जाएं। अगर वो यहां जिंदगी की बात तो इस गुनहगार इंसान ने की, इन चार कोड़ियों ने की है, लेकिन शक के साथ, और शक जो है वो हमारे लिए तबाही का बायस है। अगर शक के साथ वो बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात नहीं, अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले फिर उनके अंदर से, और बड़ी ऑथेंटिक मौत के बारे में वो बात कर रहे हैं, अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। श्योर, बहुत मजबूत अकीदा है उनका मौत पर। अफसोस कि आज के इंसान का अकीदा यीशु मसीह की जिंदगी पर हो। हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था? मैं इसलिए आया, अपनी सोच को बदलो, मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए, और कैसी जिंदगी पाए? कसरत की। लेकिन ये यहां गुनहगार इंसान बार बार यही कहता है, अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि आरामियों के लश्करगाह को जाएं, और जब वो आरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं, क्योंकि खुदावंद ने रथों और की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज आरामी लश्कर को सुनाई। यहां स्टॉप करूंगा। I would prefer to explain this thing rather than to read it to save the time. It's a long passage. ये एक लंबा हवाला है। हम देखते हैं, अगर आप छठे बाब में से पढ़ना शुरू करें तो इसराइल को चारों तरफ से आरामियों ने घेर लिया था। अब कोई शहर के अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, और हर तरफ क्या था? शहर के अंदर काल था, खाना खत्म हो चुका था, और आरामी लश्कर उनको छोड़ नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि जब पानी और रोटी खत्म हो जाएगी, बिलाखिर ये लोग फाटक खोलेंगे और हम पावर कम कर लेंगे, हम इस शहर को टेक ओवर कर लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, और यहाँ पर सब मर रहे हैं। और इस्राएल के बादशाह ने उस दौर के नबी अलीशा से कहा था कि अगर तू नबी है और फिर भी हम लोग मर रहे हैं तो आज मैं तुझे जो है मार डालूंगा। अगर हम देखें 24 बाब की 24 आयत से, तो वहां पर लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह आराम ने अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ा और सामरिया का मुहासरा कर दिया, और सामरिया में बड़ा काल था, उसे घेरे रहा, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में, कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में। गलाजत लोग खाने पर मजबूर थे, और गलाजत को सोने चांदी के बस खरीदने पर मजबूर थे। इस कदर शहर के हालात खराब हो चुके थे। और वहां पर एक ऐसा वाकया बयान है कि वहां पर औरतें अपने बच्चों को हलाक करके उनका गोश्त खा रही थी। ये कलाम में लिखा है, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं सारे। ये इस कदर सख्त काल था। और फिर
देखा तो उसको इस्राएल के उस नबी पर गुस्सा आया, उसका कहर भड़का और उसने एक शख्स को अलीशा के पास भेजा। और अलीशा को पता था, उसने कहा देखो उस कातिल ज़ादा ने मेरा सर उड़ाने को एक आदमी भेजा है, एक सरदार भेजा है। और उसने अलीशा ने, क्योंकि वो खुदा का खादम है, आप खुदा के खादमों को नाचीज मत जाने, क्योंकि जो खुदा के खादम को छूता है वो खुदा की आंख की बड़ा करीब, बड़ा नाजुक सेंसिटिव हिस्सा, क्योंकि आंख ही हमारे बदन को रोशन रखती है। खुदा की आंख की पुतली को छूता है। और उस खादम ने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले, उसने कहा जा कल इसी वक्त के दौरान, इसी टाइम पे, कल विदिन 24, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, शहर में मौत है, अगर फसलें भी उगाई जाए महीने ले जाएंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कल विदिन 24 आवर्स सेम टाइम, इसी वक्त जौ और दिनार, जौ और खुराक जो है दिनार के सेरवा फटक पर मिलेंगे। इस कदर सस्ता कि लोग उसको आराम से अफोर्ड कर सकेंगे। और वो हैरान हो सका, देख अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? उसने खुदा के खादम की बात का यकीन। आज बहुत से लोग खुदा के खादम जब खुशखबरी सुनाते हैं तो उनका यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, उसने भी एतबार नहीं किया। तो अलीशा ने, आप जानते हैं उसको क्या कहा था? उशरूब वाक़या है। उसने कहा था कि देख अपनी आंखों से देखेगा तो सही, लेकिन चखने ना पाएगा। और यही हुआ कि जब ऐसा हुआ, अब मैं स्टोरी की तरफ आता हूं कि ये स्टोरी ऐसी है कि उन 4 कोढ़ियों ने इरादा किया कि शहर में तो हम मारे हैं, चलो हम बाहर जाएं। लेकिन ये उसी वक्त के दौरान की बात है जब खुदा का खादम कलाम दे रहा था, बयान कर रहा था कि कल इसी वक्त के दौरान। और जब वो खैमों में गए तो खैमे मौजूद हैं, हजारों हजार खैमे लगे हुए हैं और हजारों हजार खैमों के इर्द गिर्द बेशुमार घोड़े और खच्चर और रथ और सब कुछ मौजूद है। पहले तो वो डरे, लेकिन जब उन्होंने देखा खैमे के अंदर गए तो कोई शख्स भी नहीं। कीमती कपड़े जवाहरात जो उन्होंने और रास्ते में लूट मार करते, वो लश्कर आया था और इलाकों को उन्होंने फतह किया था, उनका सब लूट मार का माल वहां पर मौजूद है, बेशुमार खुराक भी। अब वो घोड़ी खुश हो गई, उन्होंने लिखा है खाया और पिया और एक लश्कर में से सोना और चांदी और कपड़े ले जाकर छुपा दिए। फिर दूसरे में गए, फिर वहां से भी ऐसा ही किया, हत्ता कि शाम तक वो थक गए। फिर उनमें से एक ने अच्छा मशवरा दिया, काश कि हम अच्छा मशवरा अपने साथ रखें। लेकिन अच्छा मशवरा इंसान नहीं, खुदा का रूह आपको दे सकता है। अच्छा है कि अगर खुदा का रूह हर वक्त हमारे साथ हो, हमारी आज्ञाकारी करे, हमारी रहनुमाई करे, तो हम फलेंगे, बढ़ेंगे और जिंदगी पाएंगे, कसरत की जिंदगी पाएंगे। अब उनमें से एक ने मशवरा दिया, देखो आज का दिन कौन सा है? खुशी। आज का दिन निजात का दिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने दिन हमारी जिंदगी में खुशी और निजात के आते हैं? तकरीबन हर रोज हम खुदा के कलाम में से निजात और खुशखबरी को किसी ना किसी तौर से जरूर सुनते या उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा जरूर अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन कितने हैं कि उस भलाई को जो खुदा हमारे साथ करता है, उस कलाम को जो खुदा ने हमारे साथ किया है, कितने हैं वो औरों तक लेकर जाए? और यहां पर लिखा है अगर हम सुख की रोशनी में पहने रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। अब वो अपने कोड को भूल चुके हैं। कोई अपने आप को छुपाता था, काला लिबादा होता था, झुक कर चलता था और चिल्लाता रहता था, नाबाक नाबाक करके सुनने वाले उसके करीब ना आए। लेकिन जब उन्हें जिंदगी मिल गई, अब वो अपने सारे गुनाह से आजाद हो गए हैं और वो खुश होकर भागकर खुशखबरी दे रहे हैं, इसलिए कि वो अपने गुनाहों को भूल चुके हैं, इसलिए कि खुदा ने हमारे गुनाहों को हमसे इतनी दूर फेंक दिया अपने बेटे के वसीला से, जैसे पूरा पश्चिम से दूर है। इसलिए कि वो दोबारा कभी याद भी नहीं करता। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो निजात को हासिल करते हैं। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्हें जिंदगी मिल जाती है। क्या हमने जिंदगी नहीं पाई? फिर हम खामोश क्यों हैं? अगर हम ठहरे रहे, हम और मरने वालों तक निजात और जिंदगी को ना लेकर जाएंगे तो हम सजा पाएंगे। उन्होंने कहा अगर हम सुख की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ
हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम आरामियों के लश्करगाह में गए और देखो वहां ना आदमी है ना आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये क्यों कर हुआ? इसलिए कि खुदा के खादिम ने कलाम किया था। कलाम में लिखा है कि एलिया हमारा ही हम तबीयत इंसान था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा। कितना बड़ा फजल हम पर यीशु मसीह के लहू के वसीले से हुआ कि हम किस नेहिज पर पहुंच गए। कितना बड़ा फजल कि हम शाही काहिनों का फिरका कहलाए, जो कोई कौम, कोई उम्मत, कोई कबीला ना थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, जो रद्द किए हुए थे। निगाह तो करो कि कैसी गंदगी और गलासत से खुदा ने हमें उठाया और आज किस बड़े मुकाम पर पहुंचाया कि हम फरिश्तों का भी इंसाफ करने वालों में ठहरेंगे। ये सिर्फ यीशु मसीह के लहू की बदौलत है कि बाप ने आप अपने बेटे को भेजा। वो आज हमको ढूंढ रहा है और हमारे ही वसीले से और बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहता है। मैं यहां पर इन 4 कुड़ियों के ताल्लुक से, या शायद हम गुनाह के कोड़ में हैं, बहुत से लोग कई तरह के कोड़ में मुब्तला हैं। शायद ये हमारे लिए, इनसे रूहानी तरक्की के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं 4 चीजें बयान करना चाहूंगा जिनसे हमें निजात की जरूरत है और जो चीजें इन 4 कोड़ियों में पाई जाती थी और शायद हम में से भी बहुतों में पाई जाती हैं, लेकिन जब तक हम उससे निजात नहीं हासिल कर सकते, हम खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते और हम दूसरों का खुशखबरी और हमेशा की जिंदगी नहीं पहुंचा सकते और फिर इस तौर से हम शायद सजा पाए अगर हम इस निजात की खुशखबरी को दूसरों तक ना पहुंचा सके। पहली चीज जो उन कुड़ियों के अंदर थी वो थी नफरत। वो नफरत और हसद के अंदर थी और नफरत का गुनाह जो है वो इंसान के दिल को बीमार करता है। अगर एक साल 14 और उसकी 30 आयत को देखें तो हमें वहां पर एक बात मिलती है कि मुतमईन दिल शादमानी का बायस है और हसद जो है हड्डियों की ओसीदगी है। नफरत और हसद दिल को बीमार। फिर पहला ग्रंथी और उसके तीसरे बाब की अगर तीसरी आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। हम में बहुत से लोग नफरत का शिकार हैं। हमारे अंदर अजीब तौर से, मुझे कुछ दिन पहले किसी ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया फेसबुक पर। मैं बड़े ऐलान के साथ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक का जिक्र करता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ। उस शख्स ने मुझे हवाला देना शुरू किया कि ये तस्लीस जो है ये बाइबल से बाहर है, ये ऐसा कुछ ही नहीं। और ये उसने, मैंने देखा उसने मुझे बड़े हवाले दिए, लेकिन मैं उसके अंदर की नफरत को, कुछ लोग हमारे साथ, क्योंकि हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए। बहुत से लोग आजकल हमें मीडिया के जरिए भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, एकदम से हवालों पे हवाले, एकदम से जज्बाती तकारीर और पता नहीं क्या क्या कि दूसरा बंदा। लेकिन आप मोहतात रहे, क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे यहां पर ऐसे हालात हैं, इतने झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। और ऐसा हो रहा है, बहुत से मैंने बरगज़ीदों को देखा जो गुमराह हो रहे हैं। अब उस शख्स ने मुझे हवाले कहां से दिए,
کہ تثلیث نہیں بلکہ صرف یسوع. میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسس ہی ہوئیں گے، لیکن میں سب سے بڑا ہوں کہ جیسس وہ شخص جو صرف یسوع کے حکم کو مانتا ہے وہی اونلی جیسس ہے اور کوئی بھی نہیں. اور اگر آپ متی کی انجیل اس کے 28 باب کو دیکھیں اور اس کی غالباً 19 آیت ہے، میں دیکھتا ہوں، تو وہاں پر کوئی بہن یا بھائی ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں، بلند آواز سے پڑھ دیں یہ آیت، اور یہ مجھے کوئی بتا دے کہ یہ لفظ کس نے کہے. کیا پولس نے کہے، یا پترس نے کہے، یا یوحنا نے کہے، یا اندریاس نے کہے، یا فلپس نے کہے، یا شمعون نے کہے، یا متی نے کہے، کس نے کہے؟ ذرا پڑھیں یہ 19 آیت، صرف 19 آیت پڑھیں. کوئی جی گاڈ بلیس یو سسٹر. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو کس نام سے بپتسمہ دو؟ اچھا، یہ جو حکم ہے یہ ارشاد اعظم کہلاتا ہے. یہ حکم کس نے دیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی شاگرد بول رہا تھا؟ تو ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ تو پھر میں ہی یسوع کو ماننے والا ہوں، میں ہی ہوگی، میں اسی کا نام لوں گا. یسوع نے یہ کہا، کسی اور نے نہیں کہا. اور اس کا تو حوالہ وہ بھائی دے نہیں رہے، لیکن مجھے وہ آکسفورڈ ڈکشنری کا حوالہ، بھائی اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی اس خوشخبری سے ہٹ کر تمہیں کوئی خوشخبری دے، ملعون ہو. He will be cast, even the angels from the heaven, اگر out of this good news. We have to follow this. I don't know کہ آکسفورڈ ڈکشنری کون سی ہے، ویبسٹر ڈکشنری کون سی ہے، یا امریکن اسٹینڈرڈ کون سی ڈکشنری. I don't know nothing about this literature. I know only this literature. There are only two knowledges in this world. There are two types of understandings. حسی احساس اور مکاشفاتی ریویلیشنل. دو طرح کے علم اس دنیا میں ہے. ایک وہ علم جو آپ کی حس کی پکڑ میں آ جائے، چاہے وہ سینس میں آ جائے، آپ کی کسی بھی سینس میں آ جائے، دیکھنے کی سینس میں، فیل کرنے کی سینس میں، چکھنے کی سینس میں، سننے کی سینس میں، ٹچ کرنے کی، اینی سینس آؤٹ آف 5 سینسز، جو بھی آپ کی پکڑ میں چیز آ جائے وہ علم ہے. اور دوسرا علم ریویلیشنل ہے. اینڈ بائبل always talk about revelational knowledge. I don't know about any other knowledge about Webster or Oxford Dictionary or whatever. تو نفرت کے وسیلے سے بہت سے لوگ آپ کو یسوع مسیح سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان 4 کوڑیوں کے اندر جو پہلا کمزوری تھی جس سے آج ہمیں بھی نجات کی ضرورت ہے، وہ ہے نفرت کا گناہ. نفرت حسب ہڈیوں کی پوسیدگی ہے. گرنتھیوں میں اگر محبت کی گردان دیکھیں تو محبت جو ہے نفرت پر، ہر چیز پر غالب آتی ہے. محبت گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اگر میں محبت نہ رکھوں پھر بھلے میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، پہاڑوں کو ہٹا دوں، کچھ بھی کروں، میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور چھن چھناتی چھانچ کے سوا کچھ نہیں. محبت حسد اور نفرت پر غالب آتی ہے. آپ نفرت کے باعث کسی کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی کا منہ مٹی سے خراب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا خراب کرنا پڑے گا؟ اپنے ہاتھ. اس لیے یسوع مسیح، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی نفرت رکھی، محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا. دوسرا جو ان 4 کوڑیوں میں، یا شاید ہم بھی بہت سے منداروں میں بھی جو پریشانی کا باعث ہے، جو روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، جس کے باعث ہماری روحانی ترقی نہیں ہوتی، روحانی بالیدگی سے رہ جاتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچ پاتے. دوسرا جو ہے وہ خوف کا گناہ ہے. فیئر. بہت سے لوگ خوف زدہ ہیں. اب یہ 4 بھی خوف زدہ ہیں. شہر میں بھی ہماری کوئی وقت نہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے اپنے گھروں
और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? मैंने तेरा फिदिया लिया है। अगर हमारा फिदिया दे दिया गया है तो आपको किस चीज का खौफ है मेरे भाई मेरी बहन? मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? उसके पहले बात की 17 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? खौफ ना खा, मैं मर गया था और जिंदा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। अगर वो हमारे साथ है, if God is with us, if God is before us, who can be against us? अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? किस चीज का खौफ? खौफ रूहानी तौर पर कमजोर करता है और खौफ इब्लीस के बेहतरीन हथियारों में से एक हथियार है। उसके बहुत से हथियार हैं। मैं जो बेटी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी आने वाली किताब का हवाला दिया वो ऑलमोस्ट रेडी है, प्रिंटिंग के लिए तैयार है। कुछ चीजें मैं उनका वेट कर रहा हूं और जो भी वो क्लियर होती हैं तो मॉस्को वैली सुन उसको मैं प्रिंटिंग के लिए भेज दूंगा। तो उसमें मैंने इब्लीस के चंद हथियारों का भी जिक्र किया है और उन चंद हथियारों में से खौफ एक इब्लीस का मौसर तरीन करामत तरीन हथियार है जो वो ईमानदारों पर आजमाता है और कई दफा वो इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें खौफजदा करता है। हम क्यों खौफजदा हैं? लोगों से, मिशनों से, इलाकों से, लोगों के रवाबत से। अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा होता, तो खुदा का बंदा तो मसीह का बंदा ना होता। क्या हमारे लिए ये वाजिब है? ये मैं कलाम में से बयान कर रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहें लेटर ऑन आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 एमाल 5 बाब 29 आयत आप पढ़ सकते हैं कि हमें खुदा की निस्बत आदमियों का हुक्म ज्यादा मानना फर्ज है या खुदा का? बाइबल खुदा का हुक्म है। आप इससे हटकर हम खौफ के बायस बहुत मर्तबा अपनी रूहानी तरक्की को रोक देते हैं। खौफ हमारे ख्यालात को बदल देता है, हमारी सेंसेस पर असर करता है, हमारी सोच को बदल देता है। अगर हम सही रास्ते पर जा रहे हैं गलत रास्ते पर ले चलता है, यह हमें शक में मुब्तला कर सकता है। और सबसे बढ़कर खौफ हमेशा हमारी तवज्जो खुदा से हटाकर दुनिया की तरफ लगाता है। आज बहुत से लोग खौफ के बायस अपनी मिशनरी छोड़ दो कि हम क्या करेंगे। बहुत से लोग खौफ के बायस अपने ओहदों को नहीं छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि जो अपनी सलीब ना उठाए मेरे पीछे ना लगे वो मेरे लायक नहीं। एक शख्स यीशु को कहता कम रुक जा, ठहर के जरा वेट कर, मेरा इंतजार कर, मैं अपने बाप को दफना। वो अभी भी दुनियावी रिलेशन से, दुनियावी कनेक्शन से रिलीज नहीं हुआ था, आजाद नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को जिंदों का काम नहीं, इसलिए को जिंदगी देने आया है। मैं समझता हूं कि बाहर दुनिया में यीशु मसीह शख्स है जिसने कभी किसी जनाजे में शिरकत नहीं की, बल्कि जब जनाजा आकर उसके सामने टकराता है तो वो भी जिंदगी में बदल जाता है। मुर्दों को अपने इसलिए कि मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? जिंदगी। मौत एक ही देता है जो हमें शक में मुब्तला करता है और वो शक में इसीलिए मुब्तला करता है। लिहाजा खौफ जो है दूसरी चीज कोड़ियों में या शायद हमारी जिंदगी में भी है जिससे हमें रिहाई की जरूरत है। खौफ। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी चीज जो कोड़ियों की जिंदगी में थी, कमतरी, एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम बहुत सी बातों में आज भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी चारों डरते हैं, लोगों के सामने नहीं जाते, लेकिन जब यीशु आ जाता है तो सारा एहसास कमतरी जाता रहता है। फिर हम बोल्ड हो जाते हैं। बाद में क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और ये कहा कि ये अनपढ़ और ये कहना कि अनपढ़ और नावाकिफ लोगों ने तो कहा इनमें ये दलेरी कहां से आ गई? फिर पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहना हमें हर तरह के एहसास कमतरी पर गलबा देता है। हम कमतर लोग नहीं, हम बादशाहों के मुंसिफ हैं, हम शाही कायमों का फिरका है, हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं। पहला पतरस दूसरे बाब में आप ये पढ़ सकते हैं उसकी 9वीं आयत में। हम शाही कायमों का फिरका, हम तो फरिश्तों का इंसाफ करने वालों में से है। इस एहसास कमतरी से निकलो जो अगली हम बहुत मरतबा दूसरों पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भी भरोसा करके देखो। इसलिए कि हम यीशु
लेकिन जितनों ने चाहे वो कोई दुनिया का रद्द किया हुआ किसी तरह का भी कोई भी शख्स है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। एहसास कमतरी किस चीज का? हम समझते हैं they are superior than us, he is superior, she is superior. What is this? No, we are superior than anybody because of the blood of Christ. यीशु का लहू हमें सुपीरियर बना देता है। इसलिए हर तरह के एहसास कमतरी से निकले, दूसरे का जरिया मत बने। दुनिया हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करा के कि शायद तुम हमारे बगैर नहीं चल सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दुनिया हमें एहसास कमतरी का शिकार करके अपने फायदे निकालती और हासिल करती है। अपने आप को पहचानो, नो thyself। अगर हम अपने आप को पहचानते तो सजा पाते, ना पाते। तब बहुत से लोग कहेंगे, ओ खुदा मैंने तेरे नाम से बड़े मौजूदे किए, मैंने तेरे नाम से चर्च में ये खिदमत की, मैंने वो किया, मैंने ये किया। I don't know nothing about you man। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं you are, तुम कौन हो। इसलिए अपने आप को पहचाने, ना कि किसी का जरिया बने। एहसास कमतरी से निकले। एहसास कमतरी का एहसास जो लोग जानते हैं किसी से मतलब निकालना, वो दूसरों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं। नहीं चाहते कि ये एहसास कमतरी से निकले और अपने आप को जाने और अपनी वैल्यू को पहचाने। आप मसीही लोग हैं, आप मसीह के खून से धुल चुके हैं, अपनी वैल्यू को पहचाने। और चौथी चीज जो इन कोड़ियों की जिंदगी में थी, वो खता का एहसास, फीलिंग्स के, और हर वक्त एक एहसास रहना माजी के पछतावों में, गुनाह के बाद। अगर हम अब भी अपने माजी को ढूंढते रहते हैं तो फिर शायद हमारी तौबा सच्ची नहीं है। जब उसने ज़बूर 103 उसकी बारात के अंदर आलम लिखा है कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे। तो ये क्या है? ये खुदा का वादा है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, उसके सारे वादे हाँ के साथ अगर उसने कहा है तो यकीनन वो हमारी खताओं को भूल जाता है। फिर भी अगर आप माजी के एहसास गुनाह में, एहसास पछतावा के अंदर रहते हैं, खताओं का एहसास अपने अंदर जो जाकर रखते हैं और समझ रहे हैं कि नहीं हम फेस नहीं कर सकते, तो आपकी तौबा सच्ची नहीं है। इन कोड़ियों ने क्या किया? जब इन्हें जिंदगी मिल गई, तो ये सारे एहसास से फारिग होकर इन्होंने कहा अगर हम ठहरते हैं तो हम गुनाह पाएंगे, गुनाह सजा पाएंगे। और वो निकले और जाकर उन्होंने शहरों के अंदर, जिन शहरों में उनको जाने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने मुनादी करना शुरू की, जिंदगी की बाहर निकलो मरने वालों, जिंदगी यहाँ मौजूद है। और उस वक्त लोगों ने उनके गुनाहों को नहीं देखा, बल्कि हर की कोशिश की कि वो उससे जाकर बात करे, उससे पूछे भाई कहाँ तुम्हें जिंदगी देगी, मुझे लेकर चल। हम जो मौत के साया की वादी में रहते थे, अगर हम पर नूर चमका है, अगर हमें जिंदगी मिली है, हम क्यों नहीं मरने वाली इंसानियत को जाकर बताते, बाहर निकलते? Why not? बाहर निकलो, दुनिया मर रही है। अंधे कुएं मत बनो। अंधे कुएं पता है ना किसी को क्या होती है? अंधे कुएं जिनके अंदर पानी तो होता है बहुत गहराई में, लेकिन ऊपर से वो बस झाड़ियों से निकला नहीं हुआ पानी बंद है और झाड़ियां आ चुकी हैं, काफले प्यासे गुजर रहे हैं, लोग प्यासे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यहां पानी है, पानी मौजूद है। ऐसा ही वो ईमानदार है जिसके पास जिंदगी की निजात, खुशखबरी तो है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। आसपास उसके माहौल में, उसके इलाके में, उसके शहर में, उसके घराने में, उसके खानदान में, उसके काम की जगह पर, उसके दोस्तों में, मुआशरे में लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता जिंदगी कहाँ है, और वो जिंदगी को अपने अंदर छुपाए हुए है। इसको निकाले। You fill my cup until it overflows। तू मेरा प्याला लबरेज करता है। जब तक लबरेज हम लबरेज हो चुके हैं। आप जानते हैं कि जब आप प्याले को भरते हैं वो लबरेज
जिस कमरे में है वो उसकी इर्द गिर्द की चीजों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देता है। ये वो जिंदगी का दरिया है जिसने हमें लबालब भर दिया है। अपने अंदर से निकाले, जिंदगी के पानी के चश्मे निकाले। उस सामरिया से यीशु ने क्या कहा, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर एक, तो चश्मे क्या करते हैं, दूसरों को सैराब करते हैं। हम चश्मे हैं, अंधे कुएं मत बने। इन 4 कोढ़ियों ने जिंदगी को पाया और उस जिंदगी को जब तक उन्होंने अपने तक रखा वो सिर्फ जिंदगी थी, लेकिन जब वो जाकर खुशखबरी दूसरों को बताने लगे कि देखो वहां जिंदगी है, तब वो जिंदगी कसरत की जिंदगी में बदल गई। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और हमने जिंदगी पा ली है, लेकिन जब तक हम ये जिंदगी दूसरों तक लेकर नहीं जाते, ये सिर्फ जिंदगी है, कसरत की जिंदगी नहीं। वो चाहता है कि हम कसरत की जिंदगी पाए। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहूंगा। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, लातब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हम तो जय जयकार करते हुए तेरी पाक हुजूरी में आते और जमीन तक झुक कर तुझे सिजदा करते और मुबारक कहते हैं। पाक खुदा, इकरार करते हैं कि अपनी ही जात में हम खाक और आग हैं, लेकिन जो कुछ नहीं है तेरे फजल से है। तेरे ही फजल का सहारा लेकर तेरी पाक हुजूरी में जमीन तक झुकते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पितराना शफकत के लिए, जिसके वसीला से तूने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हुए, जिसके वसीला से हमने जिंदगी पाई। और खुदा यीशु के नाम में हमें ये फजल बख्श, इस कलाम के वसीला से जो जिंदगी तूने हमें दी है अपने बेटे यीशु मसीह ने, उसको हम दुनिया तक लेकर जाएं और खुदा उस जिंदगी को कसरत की जिंदगी में बदले, ताकि बहुत सी जानकनी रूहें वो जाने जो जानकनी तक पहुंची हुई हैं, जो मौत के करीब हैं, वो भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। सारी इल्तिजा को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में। Thank you.